रिन्यू पावर, ये सामने जो कैंपस दिख रहा है रिन्यू पावर का है और करंट में अभी यहाँ पे काम चालू हो चुका है रिन्यू पावर का, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अभी इस समय यहाँ पे काम कर रहे हैं। धोलेरा SIR की पहली इंडस्ट्री रिन्यू पावर। और इसी के साथ मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, ये तैयारियां चल रही है मोदी जी के स्वागत में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 13 मार्च 2024 यानी कि आज से ठीक 3 दिन बाद में मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके स्वागत में युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही है। धोलेरा उड़ान भरने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। यार इसको तो खिंचाई नहीं दो एक्टिवेटर। Emerging. I will next talk about Dholera Special Investment Region. As you are aware, under the National Industrial Corridor Development Program, Government of India is building huge greenfield industrial smart cities. Dholera is one of the first and one of the biggest such cities. As you will see, Dholera is going to be spread over an area of 920 square kilometers, which is about more than 200,000 acres. So it's a huge area which is being developed. And the idea is that we will put in place plug and play infrastructure which is already ready. As we will see next, how large land parcels, right from 5 acres to even more than 300 acres, one single land parcel is available. And several such facilities are available with excellent connectivity. And we have land with plug and play infrastructure. The water treatment plant is already ready. The sewage treatment plant, effluent treatment, wastewater treatment, roads, utility tunnels, ducts, and exceptionally good power infrastructure. It was realized 10 years back that India needs to create a greenfield industrial smart city which will have utilities and infrastructure comparable to the best global benchmarks. So Dholera now has got power infrastructure which is as good as anywhere on the planet. It has got multiple redundancy with the best quality of power, which pulls in power from the conventional grid as well as draws power from a renewable energy plant. And also multiple substations which are interconnected have been put in place. And even the distribution is in a ring architecture so that the power reliability is very high. And it uses SCADA system and a smart grid to ensure that the best quality power, especially required for the semiconductor industry, wherein even an interruption of even a second cannot be accepted. That kind of an infrastructure has already been created in Dholera, and assurance of good quality potable water, dedicated 100 million liters per day plant is already operational. This, you can see some of the pictures, how the roads with the utility ducts have already been created. A canal front development has been already completed. The administrative building, which has a provision for companies to use office space even as they build their own plants and offices. We have the Central City Integrated Operations Center, which pulls in feed and SCADA system from all the water supply and utility network, and that is available there. A new international airport, and this I would like to emphasize that considering the significance of Dholera to India's plans, a new greenfield airport is being developed in Dholera. And this airport, the approval has already been given by the central government. The tender has been issued, the agencies have been onboarded, land has been taken possession of, and work has already started. And by end of 2025, this airport will be operational for cargo operations. And by 26 December, it will be operational for commercial traffic. इंडिया का पहला प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, जिसका निर्माण अहमदाबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर धोलेरा में किया जा रहा है। हमने इस प्रोजेक्ट को लास्ट 5 महीने पहले कवर किया था, तो चलिए देख लेते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है इन लास्ट 5 महीनों में। आज के वीडियो में आप सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि साथ में देखेंगे धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का भी प्रोग्रेस, जो इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। फर्स्ट आते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे पर, जो स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करेगा अहमदाबाद के साथ। ये एक 4 लेन का 109 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। एंड अभी देखें तो बहुत सारी जगह पर अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ जगह पर अभी बिटुमेन लेइंग भी शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसवे के बीच में काफ़ी वाइड मीडियन गैप दिया गया है ताकि फ्यूचर में वाइडनिंग में दिक्कत ना आए। ये एक्सप्रेसवे नवगाम के पास धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करते हुए धोलेरा स्मार्ट सिटी पे जाके एंड होगा। ये एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए एक डेडिकेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो ना केवल पैसेंजर्स बल्कि कार्गो एरोप्लेन्स को भी सर्व करेगा। अब बात करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। स्मार्ट सिटी के अंदर लगभग सभी रोड्स का काम कंप्लीट हो चुका है एंड न्यू डेवलपमेंट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो बहुत ही जल्द देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर्स को बनाएगी। ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हैं टोरेंट का पावर स्टेशन भी सेटअप कर दिया गया है, जो पूरे शहर में इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ टाटा इज ऑल्सो इंस्टॉलिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हियर, जिसका कैपेसिटी होगा अराउंड 5000 मेगावाट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लांट भी सेटअप किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर धीरे धीरे नई नई इंडस्ट्रीज आना भी स्टार्ट हो चुका है एंड और भी नई नई इंडस्ट्रीज फ्यूचर में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रीन्यू का प्लांट सेटअप भी चालू हो चुका है एंड बहुत ही जल्द दे विल स्टार्ट देयर ऑपरेशंस टू। और ये है ABCD बिल्डिंग, ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ धोलेरा स्मार्ट सिटी। पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी इस बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होगा थ्रू सेंसर्स। इन फ्यूचर में पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल इसी बिल्डिंग से किया जाएगा एंड वन वे में कहा जाए तो ये बिल्डिंग पूरे स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने वाला है।
वेल ये स्मार्ट सिटी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो नियर बाई पोर्ट के साथ भी काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। ऑल्सो अहमदाबाद से धोलेरा तक फ्यूचर में मेट्रो का भी कनेक्टिविटी रहेगा जो फ्यूचर में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा ईज आउट करेगा।